ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے انور بھائی؟ الحمدللہ، آپ سناؤ۔ بھائی آپ ہی فون کر رہے، کیا ہے کیا ہے؟ ارے ہم سن گمراہ کر ثابت کر رہے، تم چیلنج کے کل مولا بات کرتے تھے، کیا بول رہی؟ گمراہ ثابت کرے تم بولے کل۔ گمراہی ہے نا، غیر مقلد۔ اچھا غیر مقلد گمراہ ہوتا، جی امام صاحب بھی گمراہ ہے بولتے۔ امام حنیفہ مجتہد تھے، ان کے حق ہونے پر تو امت کی شہادت ہیں۔ تو ان کو کوئی غیر مقلد بولا تو مطلب ان کو گمراہ بول رہا ہے نا، گالی دے رہا مطلب۔ گالی نہیں دے رہا بلکہ ان کی وہ سچائی ہے۔ اچھا غیر مقلد بولے تو ثواب بھی ہوتا کیا؟ پھر بالکل، ثواب بھی ہوتا؟ وہ مجتہد ہے نا، اس لیے غیر مقلد کسی تقلید نہیں کرتے۔ میں آپ پوچھ رہا آپ مجتہد ہے کیا؟ آپ بولے غیر نہیں، مقلد آپ کو ہم گمراہ غیر ہے۔ مقلد اس لیے بولتے ہیں۔ نہیں ہم کو بولتے کی بات سنو، ہم کو ان کی بات نہیں، بات خالی غیر مقلد کی ہو رہی کہ اپن کس کو بھی غیر مقلد بولے تو اپن کیا اس کو گمراہ سمجھ کے بول رہے یا گمراہ ہے کیا وہ اپنے بولنے سے؟ یہ بول رہا تھا آج کل جو رجسٹر اہل حدیث ہے نا، پھر آپ یہ رجسٹر اور اس پہ میں بول رہا کس کو بھی اپن غیر مقلد جب بولے تو یہ غیر مقلد لفظ جس کے لیے بھی استعمال کرے تو کیا وہ گمراہ ہوتا کیا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں پورا مطلق تو نہیں بول سکتے کسی مطلق کو، نہیں بول اس کے سکتے، عقیدے ماشاء اس کے اللہ، مسائل دیکھ کر بول سکتے ہیں۔ برابر، یعنی مطلب یہ مطلق نہیں ہے، اس میں تخصیص ہے، مطلب ایسا یہ لفظ ہے، مطلب یہ کیا بولتے اس کو، تو اس کو غلط نہیں بول سکتے اپن، ہے نا، غیر مقلد ہاں، ہونا بھی یہ جو اچھا بھی ہو ہے سکتا۔ ہاں یہ بات ہے، لیکن یہ جو بیچارے اہل حدیث نہیں حضرات باقی آپ کے فتوی دیکھو کیسا ہو جاتا نا عمران بھائی، ابھی آپ نے ایسا قبول کر لیے کہ غیر مقلد لفظ بولے یہ غلط گمراہ والا لفظ نہیں ہے، تو اس کے بعد آگے جو آپ بولیں گے نا، فتوے لگائیں گے نا، تو اس کی ہم کو ضرورت نہیں پڑ جا رہی، سمجھے کیا؟ سمجھے کیا کیسا ہے نا، سنو وہ بات ختم ہو جا رہی نا پھر۔ آپ لوگ بھی تو وہی جماعت سے ہو نا پھر۔ ہاں چلو پھر اب آگے بڑھتے، پھر لفظ غیر مقلد تو کلیئر ہو گیا الحمدللہ، جو 3 طلاق پر آپ امت کا اجماع ہے، اس پہ تو کلیئر ہو گیا نا، لفظ پہ تو کیا نہیں وہ 3 نہیں طلاق، بولوں ہاں وہ تو 3 طلاق، ہاں چلو ماشاء اللہ، کیا ہاں چلن بالتا تو 3 طلاق کا کیا، ہاں بڑھاؤ نا آگے بڑھاؤ نا 3 طلاق کا، ماشاء اللہ، ہاں پھر 3 طلاق کے امت کے 3 ہونے پر اجماع ہے۔ آؤ تو اپن آپ کیا لوگ بول کیوں رہے نہیں مطلب؟ مانتے؟ کیوں نہیں مانتے اہل حدیث حضرات؟ ہم کب بولے 3 طلاق سے حق ہوتی ہے، 3 نہیں ماننے 3 ہونا؟ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، ایک مجلس کی 3 بالکل، طلاق 3۔ ہاں ایسا پورا بولنے کا نا تو مزہ آتا، خالی تم کیسے 3 طلاق کرتے نا، اپن لوگ کیسے سمجھ میں نہیں آتا 3 کہ ہم طلاق بولے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ نہیں 3 طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی، گمراہ ہے برابر، نا یہ مسئلہ۔ نہیں 3 طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی، ہم بھی اہل حدیث بھی مانتے ہیں، یہاں پہ ایک الزام لگانے کے نہیں ایک مانتے۔ مجلس کی ہاں یہ پورا بولو نا، وہی تو میں بولا پورا بولو نا، خالی 3 طلاق بول کے ایسا گمراہ مت کرو کسی کو، ایک مجلس کی 3 طلاق، ایسا پورا ورڈ بولنے ہونا۔ اچھا، آپ لوگ نہیں مانتے ایک مجلس کی 3 طلاق کو کیا مانتے؟ ایک مجلس کی 3 طلاق نہیں مانتے آپ؟ کیا مطلب کیا مانتے نہیں، مطلب پورا ایک بولو نا۔ مجلس کی 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے کیا؟ پوچھ رہے ہاں نہیں مانتے نا، ماننے ہونا کیا؟ حدیث آپ کے پاس حدیث کون سی ہے؟ نہیں ماننے ہونا کیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ ماننا چاہیے کیا، میں پوچھ رہا ہوں۔ ایسے نہیں مانتے؟ اور اگر کوئی جیسے 3 کو 1 مان کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 سنو تو طلاق میری کے بات، بعد بیوی حرام ہو نہیں جاتی ہے۔ پہلے حکم واضح کرتے ہیں پھر دلیل دیں گے نا اپن، ایک مجلس کی ہے کیا قرآن میں؟ چلو اس پہ بات کر لو دلیل سے، قرآن کی آیت پڑھو ذرا، وہ 3 طلاق سے حلال حرام ہو جاتی 3 طلاق سے۔ 3 ہلو طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ سنو 3 طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی تو وہ قرآن کی آیت پڑھو نا، جیسا کہ ایک وہ مجلس جب کی تک 3 اس کے طلاق لیے سے، حلال نہیں کہ دوسرے نہیں مرد سے ہاں جب پڑھو تک پڑھو 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 پھر نکاح نہ کر لے، پھر اس کے بعد اس کے پہلے بیوی چور کے لیے حلال ہے، جب ہاں تک نہیں۔ تو کیا لفظ ہے شروع میں جو اپنی بیوی کو؟ 3 طلاق 3 طلاق ہاں 3 طلاق، تو یہ تو میں مان رہا ہوں نا، تو کہاں مانتے آ رہے ہو تم؟ ابھی بولے 3 کو 1 مانتے بول کے، تو ایک مجلس کا کہاں ذکر ہے وہاں پہ آئے تھے؟ تو اس میں مجلس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو تم تو کیسے پھر مجلس تم قائم کیسے کہ کرتے؟ مجلس پہ فٹ کر رہے پورا؟ نہیں تم نہیں کرتے نا، ہم تو مجلس کی قید نہیں کرتے، مجلس ایک مجلس ہو الگ الگ مجلس ہو، ہم تو قید ہی نہیں کرتے، یہ تمہارا مجلس کا دعویٰ تم کیا ہے لوگوں نے لیکن، پروپون نہ کیا، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف تم لوگوں نے مجلس کو بڑھا ہے نا۔ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں، میرا دعویٰ ہو 3 طلاق چاہے کسی بھی حالت ایک میں مجلس 3 کی، طلاق 3 ہوتے ہیں۔ اس پہ تو کس کا اختلاف نہیں، مسئلہ ایک والے کا ہے۔ نہیں، ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلس ہو، ہم مجلس کا مقرر ہاں نہیں کرتے، ہمارے پاس قرآن کی ہاں آیت ہے ہاں ہمارے پاس۔
हाँ अल्लाह हाँ ताला भी क्या कहीं है मजलिस का जिक्र नहीं करे। तो चलो चलो देखिए ये मेरा तुम गैर तरीका, मुखलिस ना करे तो ये चलो मजलिस। मेरा तरीका ये है इमरान भाई कि मैं बात को बढ़ाने के मतलब बहुत ये हूँ कि मैं बात बढ़ाना चाहता हूँ हमेशा, मतलब वसी दिल बोलते ना, खुले दिल का इंसान है इंशाल्लाह। तो अभी आपने आपका बोले नाम क्या कि है जैसा, साहब? सुनो ना अभी आप बात आगे बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह, अपन मैं आगे आपका बात नाम क्या है? बढ़ाते हुए खत्म नहीं करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, आपका नाम क्या पहचान है? जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से पहचान रिजवान जाएंगे साहब है थोड़ी क्या? देर में। बराबर मैं बोला ना पहचान जाएंगे। हाँ तो मैं ये बोल रहा था इमरान भाई, इमरान भाई। रिजवान साहब, आप अहले हदीस में खड़े हुए था दिखता मेरे को कभी। जी जी अहले हदीस में आप खड़े जाते ऐसा दिखता मेरे को। नहीं नहीं, कुछ नाम जल्द से जल्द देखिए, आप मुकल्लिद बन जाएंगे। सुनो ना मेरी बात, अब मैं आप आगे बढ़ रहा पढ़े ना, लिखे बोले तो मुकल्लिद बन जाते अब मैं अच्छे से। बनना चाह रहा ना, इसीलिए तो आगे का सवाल कर रहा ना। नहीं साहब, अब आप आगे मेरे को ये बताइए, ये मजलिस कहाँ से लाए आप लोग? वो तो बताइए मैं आप मुखल्लिद बनाना चाह रहे कि नहीं मुझे? क्या बोल रहे? आप मेरे को मुखल्लिद बनाना चाह रहे ना आधे कि तो नहीं चाह रहे? मुखलिस बन गए आप, अब आगे बनना है। कुरान मान के तकलीद हो जाती है ऐसा, अल्लाह अकबर। ये तकलीद कहाँ से ले, कुरान मान नहीं के नहीं, तकलीद हो। कुरान मान के तकलीद नहीं, हाँ कुरान हाँ मान के हक बात को तुम कबूल कर रहे हो ना हमारी। तो वो मुखल्लिद हो जाता। मुकल्लिद के मुताबिक आ रहे तुम आहिस्ता आहिस्ता। अब मुकल्लिद जो मतलब जो है, कुरान को लेके, कुरान की किसी बात को अपन मान लिए तो मुखल्लिद हो जाते हैं ऐसा। नहीं, मुकल्लिद की जो नजरियात है हाँ वो तो मैं नजरियात मुखल्लिद का बनना चाह रहा ना, अभी तो मैं मुखल्लिद नहीं बना ना, कुरान की तो वाज़ेह आयत अगर आपको लग रही कि वाज़ेह आयत है पूरे वो। बन जाओ, पूरे हाँ बन पूरे जाओ, पूरे बनना चाह रहा मैं, पूरा इस तरह बनूंगा मैं। पूरे तो उस बन आयत की तफसीर में ना, आपने को इमाम अबू हनीफा का कोई तो भी ऐसा कौल होना कि एक मजलिस की 3 तलाक ना 3 होती है, ऐसा उस आयत के समझ गया ना, तफसीर में होना आप लोगों का, ऐसा कोई तो भी कौल होना कहीं से भी। किसी भी मोहद्दिसीन का लगा सकता हूँ या खाली मैं इमाम अबू हनीफा मुखल्लिद का? किसका तुम बनाना चाह रहे मेरे को, मुखल्लिद किसका बनाना चाह रहे? मैं तो अभी आपको जो है पहले सलफ का मुकल्लिद बनाना चाह रहा हूँ। हाँ सलफ के पैरोकार तुम बताना चाह मतलब कभी भी किसकी भी तकलीद रहे। जायज ओरिजिनल मतलब अहले ना? हदीस, पहले ओरिजिनल अहले हदीस बनो। नहीं मैं बोल रहा फिर जायज है ना, नहीं मतलब क्या बोल रही? मतलब तो ये हो गया, मतलब आपके नजदीक जैसे कोई काफिर है, खुदा को मानता ही नहीं है या नहीं नहीं मुल्हिद है, नहीं तो नहीं, उसको पहले आप तुम्हारा को ये मुशरिक मैं बता बनाएंगे। रहा हूँ, पहले तुम जो है सही अहले हदीस बनने की दावत दे रहा हूँ तुम्हारे। अच्छा तो ये सही अहले हदीस है, मतलब सलफ के अकवाल तो मानना। सही अहले, हाँ, गलत के अक़वाल को माशाअल्लाह, मानना, मतलब सलफ के अकवाल को कुरान मानना हदीस ये को अहले गलत हदीस के का सही फायदे से मजहब है, समझना। सही मजहब है कुरान अहले हदीस, हदीस का ये, हाँ सही हदीस, सही मजहब है, अपनी सही तरफ से मजहब है नहीं ना। कर लेना कुछ नहीं पता। हाँ चलो माशाल्लाह, तो मतलब तो मैं आपने मान आपको ये लिया बताता हूँ, कि सही। अगर नहीं आपने पढ़ा एक कुरान के सेकंड, बारे एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बात मैं वाजे कर रहा हूँ, अनवर भाई भी माशाल्लाह सुन रहे होंगे जी कि सुन यहाँ रहा हूँ पर अभी शेख। एक बात अली अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई ने खुद कबूल करी है, समझ रहे हैं हाँ जी जी कि कुरान हदीस को सलफ के कौल के अक़वाल के मुताबिक मान ना बोले, ये सही अहले हदीस है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पता चला कि सही अहले हदीस भी होते हैं, जी जी और हमारा भी दावा अल्हम्दुलिल्लाह। वही है, ठीक है जी ना? जी ठीक। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तकलीद किसकी करवाना चाहते हैं मुझे? जी इमरान भाई। हेलो, हाँ किसकी तकलीफ करवाना चाह रहे हैं मुझे आप? तकलीद पे बात अभी नहीं हो रही ना शेख। नहीं हो रही तकलीफ पे बात? उम्मत का जिस चीज पर इजमा है, इजमा पे बात हो रही है। ये जो जुमला है आप लोग ना, तो आप तो लोग आप सॉरी, आप तो तो आधे आधे मुखलिफ इमाम बन साहब, गए। हम इमाम नहीं, साहब इजमा से बाहर है क्या? मेरी बात तो सुनो ना हजरत, जिस चीज पर उम्मत मुत्तफिक है, उम्मत में इमाम साहब है कि नहीं? क्या अरे बोले? यार इमरान भाई, तुम वो पहले तलाक के कुरान की आयत पढ़ो, किधर किधर घुमा रहे तुम, पहले वहाँ पे आ नहीं जाओ नहीं तलाक के कुरान की आयत पे। अनवर भाई वो क्या बात जी चल रही, सुनो सुनो, एक जी आयत पेश करे जी जी जिसमें था कि अल्लाह फरमाए कि 3 तलाक हो गई ना तो बीवी हराम हो जी जाती। जी अब जी जी मजलिस का जिक्र नहीं था, जी उस जी आयत को जी अपन भी मानते, 3 को 3 अपन भी बोलते, बेशक 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 मसला मजलिस पे अल्हम्दुलिल्लाह। अटका। मस्जिद की साइज लगाते हैं हाँ ना शेख, एक 3 को 3 सेकेंड, सपोर्ट। जी मसला जी मजलिस पे अटक गया, जी तो अपन ने नहीं क्या नहीं, आप बोले, 3 को 3 नहीं मानते ना शेख। रुको ना, ये देखो फिर झूठ बोल रहे हो तुम। जी। 3 को मानते हैं अभी भाई, बोल 3 रहे को हैं आप 3 मजलिस कैसा में नहीं मानते मानते। हैं, कौन 3 को बोला नहीं 3 को मानते। 3 मानते, कौन बोला 3 को 3 नहीं मानते हम? आपके उलमा खुद कहते बता हैं। ना, नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, ला तो दे। शरीयत के खिलाफ बताते मसले को फिर। पढ़ो पढ़ो, कोई एक आलिम का कौल पढ़ो हमारे, 3 को 3 नहीं मानता जो, पढ़ो। वो कहते हैं कि 3 तलाक एक होती है, बल्कि आपके आलिम कहते हैं क्या बोलते हैं? 3 तलाक एक होती है। हाँ यही लफ्ज दिखा दो चलो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। और अगर इसके अंदर कुछ लफ्ज आपने खाया होगा तो मैं फिर यहाँ पे आमीन कुछ बोलूंगा, इसका आपको नहीं कर झूठा रहा, मक्कार बोलूंगा, फिर मैं आपको, फिर आपको बुरा ना मजलिस लगे की अगर खैर नहीं आपने लगाना, मजलिस की खैर मजलिस नहीं लगाना, फिर मजलिस खा रहे हैं अभी आप।
नहीं हाँ। 3 को 1 बोलते बाद में तुम। उसको ढकार नहीं होना। वही बाद में मजलिस का जिक्र नहीं लाना इमरान भाई, उसमें याद रखना। 3 को 1 बोलते ना तुम। मैं मजलिस का जिक्र नहीं लाना बाद में, हम 3 को 3 मानते हैं, मजलिस का जिक्र नहीं लाना बाद में। बराबर। लगाए तो देवबंदी झूठा है बोलेंगे। हाँ, क्या बोल के लाना तुम? 3 तलाक एक मजलिस में दिए। सही मुस्लिम की रिवायत पेश करते हैं, नबी के जमाने में 3 एक होती थी। रिवाज सही है क्या वो? के जमाने में 3 रिवाज सही है क्या वो? रिवाज सही है क्या वो इमरान भाई? नहीं नहीं, तुम बोले ना पहले दलील दो, बोले तो मैं दे रहा हूँ तुम पूछ रहा, दलील से पहले अभी तो पूछा जाएगा ना सही है क्या? पहले हमारे आलिमों के अखबार से दे, तुम बोले तो वो हदीस पेश करने लगे। झूठ वो बोल रहे हैं। खुद ये दलील दिया 3 एक। अनवर भाई वो अखबार नहीं है शायद, चलो दलील पे अपन आ रहे हैं। मैं क्या बोलता, जी 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 दलील देने से पहले अपने को ये होना कंफर्म कि भाई ये दलील सही मानते हैं ना, दलील को मतलब ये जी सही दलील है, सही रिवायत सही मानते मुस्लिम हैं। शरीफ की हदीस ज़ईफ रहती क्या? माशाल्लाह सही मानते हैं, मतलब आगे बढ़े। अरे उम्मत हो गया, का कबूल करवा लिया मैंने। है 3 एक उम्मत का होती ही थी, बोल रहे नबी के जमाने में 3 एक होती थी, हाँ अबू बकर के जमाने में 3 एक होती थी, हाँ। उमर फारूक के 2.5 साल तक या साल तक 3 एक होती थी। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये हाँ, हाँ। जो है आपके ये आलिम गलत होता कहते था? हैं कि ये गलत होता था समझते क्या? थे। कौन समझते थे? उसके नामा तो नहीं बोले, अच्छा लेकिन अच्छा। ऐसा समझते थे कहते। हाँ हाँ। तो तो ये 2.5 साल तक, वो भी 2.5 साल तक कौन समझते? ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के 2.5 साल भी लोग समझते थे। गैर मुक़ल्लिदा समझते थे, हाँ ये गैर हमारा- मुक़ल्लिदा समझते थे। अच्छा, वहाँ भी थे गैर मुक़ल्लिद? हाँ, वहाँ भी थे गैर मुक़ल्लिद? वहाँ पर भी खवारिजीन थे, शिया थे, राफिया थे, हाँ हाँ मुनाफिक थे, हाँ हाँ अरे जने थे वहाँ पर उस वक्त। हाँ हाँ गैर मुक़ल्लिद भी थे। अब आगे हाँ 3 में एक समझते गैर मुक़ल्लिद है ना। एक सेकंड, हाँ गैर मुक़ल्लिद भी थे। चलो माशाल्लाह। तो अब मैं ये पूछ रहा कि वो जो उस जमाने में 3 एक थी जो लोग मानते थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, सुनो ना, नामा नहीं बोले उन्होंने, कौन मानते थे वो नामा नहीं बोले। तो नाफिज किस पे किए फिर उन्होंने? किस पे? गैर मुक़ल्लिदा को पकड़ के नाफिज करे होंगे। हाँ तो मानते कौन थे फिर? क्या बोलेंगे? मानते भी वही होंगे, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना फिर? भाई वही बोल रहा हूँ, जो नामा तो नहीं बताया कौन से गैर मुक़ल्लिदा थे वो टाइम पे। हजरत उमर, वो दो जमाने छोड़ दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु उमर अलैहि फारूक वसल्लम। तला पकड़ के सुनो क्या मेरी करे, फुल दीदी घड़ी देख के सुनो बोले, मेरी बात। 3 को 3 बोल बेवकूफ, अल्लाह के 3 को 3 सुनो बोल। सुनो 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 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना छोड़ दो, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना छोड़ दो, हजरत उमर का जो 2.5 साल का जमाना था, लोग 3 को 1 मान रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं नाफिज ना कर दूं। अब मैं ये पूछना चाह रहा कि वो नाफिज किसके ऊपर कर रहे हैं? जो 3 को 1 मानते तो उन्हीं पे नाफिज कर रहे हैं ना। हाँ 3 को जो एक, तो वो कौन थे, किसके ऊपर नाफिज कर रहे थे? वो शिया थे, कादियानी थे, गैर मुक़ल्लिद थे, किस पे नाफिज कर रहे हैं वो? गुमराह लोग थे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अनवर भाई अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा अरे को ये जी 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 ये ऐसे ही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी ऐसे ही। अल्लाह को क्या बात करूं अनवर भाई, बोलो क्या बात करूं, बोलो। ऐसे ही है ये खादियानी नहीं, इनके सारे होगा। बस खत्म इमरान करो क्या भाई, बात कर रहे हैं यार तुम? अल्लाहु अकबर, इमरान क्या बात कर रहे हैं यार तुम? गैर मुक़ल्लिदा थे उस वक्त के जमाने के। अरे यार थोड़ा सुधरो यार, तुम थोड़ा समझो, थोड़ा क्या बोल रहे हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तुमने गैर मुक़ल्लिदों पे नाफिज करे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह और गुमराह लोगों पे और शिया अस्तगफिर, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। ये अनवर भाई तकलीफ आप की बात बरकत कर है रहे ये। हैं, मैं कर रहे। अनवर भाई आप बात कर लो। 3 तलाक के बाद बीवी हराम हो जाती, तुम कुरान की अनवर आयत भाई। को गलत साबित करना चाह रहे क्या? अरे तू पहले अनवर कहीं भाई, तो देख क्या जा, बात टिक कर के रहे हो, बात बोलो। करना यार। करो इसकी जहालत कुरान हम की करेंगे, आयत को करो। झुठला रहे क्या? मेरी ऐसी हिम्मत चाहिए नहीं यार होती भाई। है साहबा के बारे में इतना सख्त सुना ये कौन से मैंने। साहबी है देवबंदी, बताओ? अरे भाई इनके कौन से अकाबिर साहबी? इससे ज्यादा बोलो। नहीं कौन से अरे साहबी? साहबा के बारे में मैंने पागल। नहीं कहा ना। पागल वो कौन थे जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु साहबा के के बाद आए जमाने थे? में साहबा को मैंने नहीं कहा, मेरा तो हाँ, अकीदा तो- है साहबा पूरे हिदायत पर थे। अरे तो फिर वो किसके ऊपर हुक्मनायत कर रहे थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु? पागल देवबंदी। तो किसके ऊपर? उसका नाम तो नहीं दिया गया ना। अरे कोई वो साहबी तो पूरी कौन थे? उनकी उम्र, अरे पूरे के पूरे लोग थे ना उसमें। साहबा को खास करके अलग करे क्या? साहबा तुम ये वहाँ फौन को पर नहीं साहब मानना लिखे बोल के। वाला है, वहाँ नाम नहीं दिया गया। तुम कैसा बोल सकते हाँ साहबी तो थे वो? अरे तो इजमाई हुक्म है चलो, ना, एक खलीफा काम करते खिलाफत हैं। मुस्लिम का। तुम मेरे को अच्छा ये बताओ, सुनो, पूरी सुनो। गैर मुक़ल्लिद को अनवर चैलेंज, भाई, जी, अनवर जी, भाई जी। में साहबी का जी, नाम एक जी, काम दिया करते तो हैं, नहीं तौबा कर काम लेते। करते हैं, जी, एक सेकंड जी। इमरान भाई सुनो। नहीं आपको नहीं ये कहना मेरे है को बात कि बताओ, किसी बात साहबी आगे का बढ़ा रहा नाम ना, बता दो, मैं तुम बोला मैं ना, तौबा मैं कर लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं, बराबर चूचू करने से कुछ फायदा नहीं है। बराबर एक साहबी का नाम बताओ तुम। बता रहा हूँ, सुनो बता रहा हूँ। बताओ। मैंने शुरू में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिल वसी है, अपन बात को कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं। नहीं, चलो मैं चूचू क्यों फिर करे तुम? हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, चूचू इतनी क्यों बड़ी करे तुम? गुस्ताखी वो के बाद भी। हाँ बढ़ा रहा ना मैं बात आगे, सुनो अब नहीं मैं बढ़ा रहा बड़ा भाई वो हूँ। अब आपका कहना था, तुम जो चूचू सुनो, करके ना अब एक्टिंग अरे कर भाई रहे हैं, चुप रहे नौटंकी इमरान, कर रहे हैं।
सुन लेते, मैं बात को आगे बढ़ा रहा ना, सुन गैर लेते। मुकल्लिद सुन लो, मैं आगे बात को बढ़ा रहा। नहीं अनवर भाई, बताओ। मैं अपनी बात जी, रख रहा हूँ, जी। ठीक है ना। बात जी। ये मैं रख रहा हूँ कि इनका कहना था कि जिसके ऊपर नाफिज की है वो कादियानी या शिया या राफजी या जो भी गुमराह जी। लोग थे जिनको गैर मुकल्लिद भी इन्होंने कहा। जी ये जी जो जी तफसीर बयान कर रहे हैं ना, ये कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पे नाफिज किया, मैं जी चैलेंज जी। करता हूँ ये अपने मजहब से किसी से भी दिखा दें। चलो, और आसान कर दिया बेशक मैंने ना। बेशक 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 चलो पेश बेशक। करें, ये किसी से भी पेश कुल करें। हाथ बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बराबर, हाँ लाओ तुम दलील, चलो अपने अपने दावा में मजहब से सच्चे लेके है आए। तो अपने मदद से दलील लेके आओ। कौन ला बेटा? बराबर। अच्छा ये बात बोलो, मेरे को एक बात बोलो। कुल हाथ सवाल समझे बुरानकुम ना? इन कुंतुम दावा तुम्हारा है, सादिकीन। दलील मेरे से ले रहे हो कोई इंसान। देखो आपने दावा मुझे जो तुम्हारा पहचान है, लिया ना, तो ये दावा ऐसे नहीं तुम्हारा पहचान है, लिया। दलील मेरे से ले रहे। मुद्दई कौन हुए? दावा हमने किया था। अल्लाह अकबर, हाँ, क्या है तुमने भाई? किया है ना दावा। नाश्ता अरे कर तुम रहे पहले हैं, एक अच्छा रहे, मजलिस अच्छे की से दस लगाई। पाया तुमने वाया कहा खाओ 3 को ठंडी 1 में जरा, किसने कहा? दिमाग तुमने नक्शा कहा बहुत 3 को 1 होता है। किसने कहा? अरे बेवकूफ इंसान, सुनो बात। तुमने कहा 3 को 1 किसने कहा कुरान के मुकाबले? हेलो, हाँ बोलो ना। तुमने कहा 3 को बोलो। 1 किसने कहा बोल के बोले? तुम बोले नहीं मम्मी बोले? का तेरा फोन लेगा। हाँ बोलो ना, हेलो, आगे चलो ना। हाँ बोलो तुमने ना। कहा ना ये 3 को 1 कहा किसने बोल के? तो तुमने कहा कि हेलो, वो कादियानी, राफजी, शिया अरे वगैरह थे जो उस सुन वक्त रहे मानते भाई, थे। तुमने कहा ये कुरान के मुकाबले में 3 को 1 किसने कहा बोल के पूछे तुम। बोलो। हेलो, अरे बोलो ना फिर। हजरत उमर, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर के जमाने में जो 3 एक मानते थे, उसके बारे में तुमने कहा कि वो खवारिज थे, वो राफजी थे, वो शिया थे, वो गैर मुकल्लिद भी थे। अच्छा यही कहा ये था हमें ना आपने? ऑडियो लगा सकते हो तुम? हाँ ये ऑडियो लगा सकते हैं? ठीक है अनवर भाई, झूठों पे अल्लाह की लानत ठीक बोलो। है ना अनवर हाँ भाई। नहीं, बिल्कुल झूठों पे बिल्कुल लानत बोलो। बिल्कुल बिल्कुल झूठों पे बिल्कुल। अल्लाह की बेशुमार लानत, जरात के आमीन बराबर आमीन लानत है। आमीन खाली आमीन। अगर नहीं, झूठों आपका का ये खाली। अगर आपका ये कहना ना हो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जो लोग मानते थे 3 को 1 वो गुमराह लोग थे, बाकायदा बाद में आपने मेरी इसको बात क्लियर सुनो, किया कि वो राफजी, शिया और सुनो खवारिज थे, और आपने गैर मैं मुकल्लिद भी अपना उसमें अकीदा शुमार पेश किया कर था। देता हूँ। सुनो, मैं अपना अकीदा पेश कर देता अभी हूँ। तक क्या कर रहे थे फिर? मैं सिर्फ अभी तक तुम्हारे टाइम उल्लू पास कर माँ रहा अभी की था। तक जो बातें पेश समझा रहा किए था। क्या था वो? अरे अभी तक हमारे जो बोले उस्मान क्या से था तो वो? भाग जा तू भगोड़े नहीं तुम्हारे जाने उल्लू तेरा माँ जो उलमा थे वो से। बात समझा रहा था। तुम्हारे उल्लू माँ जो बात बोले 3 को 1 बोलने की, तो ये शाज वाली रिवायत, जबकि ये मरदूद रिवायत है, शाज है कौन सी? ये रिवायत। अनवर भाई देखिए, शुरू में मैं क्यों ठीक है। पूछा था सही है कि गलत है? देखो हाँ, कैसा जी, शुरू में सही बोले, शुरू में कैसा सही सही बोला बोले, सही सही रिवायत बोला है। सही बोला खुद सही बोला मुहद्दिसीन शुरू लिखते में हैं, अपनी। इमाम बैहकी कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को इसीलिए नहीं लिए कि वो मुखालिफत वाली बात है। चलो भागना नहीं, अनवर भाई हेलो, भागना नहीं रिजवान साहब, हाँ मैं जवाब दे रहा भागना हूँ, नहीं, मैं जवाब मैदान दे छोड़ रहा के इसका। भागना नहीं, अब मैं इसका जवाब दे रहा, मैं नहीं इसका मैदान जवाब छोड़ दे के रहा, भागना नहीं तुम। मैं जवाब दे रहा ना इसका। मैं ये सुनो, जो इमाम ये बुखारी समझा ने जो बोले हैं मैं सहाबा उसका अगर जवाब दे रहा गुमराह ना, है बोल के अगर ये समझोगे रे, मैं जवाब दे रहा ना ठीक इसका। है, मैं ही सहाबा अनवर से भाई नहीं बोला, लेकिन सुने, ये भी जो सुने, ये अनवर भाई भी सुने। तुम अनवर लोग भाई कहते हो ये बात। सुन रहे हैं? हेलो अनवर भाई, अनवर भाई अरे मसरूफ पे अनवर क्या लग रहा साहब मुकल्लिद बन गया, और क्या है तुम्हारी बात पे? है? अनवर भाई अनवर भाई मुकल्लिद बन गए। हाँ मैं बात क्या था, बोलो बोलो अभी आगा में हाँ अनवर भाई सुन रहे क्या? जी 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 अनवर भाई सुन रहे क्या? जी जी तो सुन रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ। बात बन रहे क्या? इमरान भाई ने बात आगे इस तरह बढ़ाई है कि जी। वो रिवायत शाज है बोल के इमाम बुखारी और एक और इमाम का कौल, अच्छा इमाम यानी बैहकी का अपने नहीं, पहले एक अपने सेकंड पहले पूरा के बोलने फल दो, पे फिर गए हो, पूरा पहले के पूरा फल पे बोलने फिर दो, गए यानी। तुम पूरा अभी बोलने दो, आगे बच जाओ। पहले तुमने कहा 3 को 1 किसने कहा बोल के पूछे तुम। पूरा बोलने देते मेरे को। नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई ना। तामुल से सुनो ना, आराम से मौका नहीं देंगे नहीं, तुम्हारे। तामुल से आप सुनो आप। अब तो सुनते चाह रहे रे बाबा तुम्हारी बात। अरे कहाँ से सुन रहे थे? बोलो अनवर भाई सुने, भाई रिजवान सुने जी, अनवर भाई रिजवान सुने, शुरू आपके कर लिए दो। मैं भी सुन रहा हूँ। जी 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 नहीं, नबी 3 को 3 कहने की तो तुम्हारे मन में एक ज़ईफ रिवायत जो शाज़ रिवायत है, और जो इमरान है भाई शुरू में तुम सही बोले ना वो रिवायत को तुम। अनवर भाई पूरा शुरू में बोल लेने दो तुम- उनको, मैं जवाब अच्छा, देता, चलो। पूरा बोल लेने दो उनको। चलो, सेहत के ठीक है, वास्ते ठीक है। हदीस सेहत के एतबार से सही है, लेकिन अमल के एतबार से कमजोर है। अच्छा तुम बोल लो भाई तुम्हारा क्या क्या है पूरा दावा, वो हदीस के ऊपर पेश कर दो। वो रिवायत बाद में- शाज़ है, अच्छा सुनो, वो रिवायत जी, शाज़ है, जी और वो रिवायत गैर मदगुला के लिए है, और वो जी। रिवायत में खुद आपके क्या नाम है आलिम साहब हमारा नहीं कि बोलना उन्होंने भाई, ये तुम्हारा कहते बोलना, हैं। तुम्हारा मौखिफ बोलना हाँ पूरा। वही, घर की गवाही देना, ये भी सुन्नत है ना नबी की। बोलो फिर हम घर की गवाही दिए तो मानना फिर वहाँ गैर भाई आप मुखलिफ के बाद।
मैं पहले देता ना, पहले इसके बाद वो कबूल करो। देना, फिर हम भी दिए तो आपके मांगना। खलीलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? एक सेकंड, कहीं नहीं जाना। कराने की जमात। मैं अभी नहीं बोला, मैं अभी नहीं बोला, रुको। मैंने कहा अभी कि मैं बोलो भी सुनूंगा। रखो आप भाई बोलो क्यों भी नहीं रखो, बोलो रखो नको? नहीं, मैं शांत रहा, मैं इसके लिए तो मैं खामोश रहा कि मुझे वक्त मिलेगा बोलने के लिए। जी जी देखो बोलो। तो 3-4 चीजें बातें बोली अनवर भाई इन्होंने। एक बोली कि वो जी। रिवायत शाज है, शाज रिवायत जी। ज़ईफ होती है, ये भी मानते हैं, ठीक है ना। जी एक बात जी इन्होंने ये बोली कि वो गैर मदखुला के बारे में भी है। जी अब मैं इनसे एक सवाल है ये कि जो रिवायत इनके नजदीक ज़ईफ है यानी शाज है जी जी और गैर मदखुला के बारे में, उसके बारे में इनका ये, उसकी तफसीर में ये कहना कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिस पे नाफिज किया था वो शिया जी। राफजी और गैर मुक़ल्लिद या फिर वो खवारिज थे। तो ये ज़ईफ रिवायत के बारे में कैसे कि इन्होंने फिर ये वाज़े हुक्म लगाया? या तो ये गैर मदखुला अभी इन्होंने क्या कहा, वो गैर मदखुला थे, तो वो गैर जी मदखुला वाले भी क्या राफजी, शिया, कादियानी या गैर मुक़ल्लिद या खवारिज ही थे, या वो सहाबा थे? अब ये जवाब दे दे या तो। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा तो ये बात जो बताइए, रिवायत ज़ईफ थी तो तफसीर क्यों बयान करे आपने, उसकी तशरीह क्यों करे? क्या नहीं, मैं ये गुमराह बोलना चाह रहा क्या हूँ, वो गुमराह तुम लोग आप रहती पेश शेख, करते जो बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा। तकलीफ क्या गुमराही रहती शेख रिजवान भाई, आज पता चला अच्छा, ये मुझे वल्लाह। तशरीह हम लोग पेश करते हैं, जो आपने तशरीह पेश की थी, हमारे किस आलिम ने तशरीह पेश की है ये? अच्छा सुनिए, मैं बोलता हूँ आपको, सुनिए। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, जो तशरीह मैं आपने बोलूँ बयान आपको, की उस हदीस की, शेख अब्दुल शरह जो कादिर बयान की जिलानी थी, फरमाते हैं, ये तीन को कुछ भी नहीं समझना, ये यहूदी है, यहूदियत है ये। हाँ तो यहूदियत है ना वो, अब्दुल जो बर तीन को रहमतुल्लाह तीन अलैह कहते हैं ये खवारिजी ने, हाँ, क्या अहले बोले? बिदात ने। पूरी बात क्या बोले? नहीं पूरी हुई, बात। सुनो सुनो, तफसीर सुनाता हूँ, सुनो। हाँ, सुनाओ सुनाओ। तीन के तीन होने पर इज्मा है उम्मत का। अगर ये जो इज्मा का मुनकिर है वो हमारे पास जो है कोई मायना नहीं रखता। हाफिज इब्न हजर असक़लानी फरमा रहे, हाँ, और इमाम बुखारी ने भी तीन को तीन माना है। एक ही मदखुला मस्जिद के गैर मदखुला मदखुला, उधर लिखा हुआ है। मदखुला किसको बोलते हैं, गैर मदखुला किसको बोलते हैं? वो तो आप बेहतर जानते हैं ना, मदखुला गैर मदखुला किसको बोलते हैं। आपने ही तो इसको पहले शादीशुदा लिखा है था। आप? आपकी शादी हुई है? शादी हुई है आपकी? नहीं, शायद ये भी तुम पूछे ना सवाल, जवाब दो ना। जवाब दे रहा हूँ ना मैं, मदखुला गैर मदखुला। आप शादीशुदा है कि गैर बोलो ना, फिर शादीशुदा? फिर को मुंह में अटक गया, बोलो क्या जमाना क्या जा रहे तुम्हारे भाई? बोलो ना फिर वैसे जल्दी, से फिर क्यों नहीं बोल रहे? फंस गए ना, गैर वो मदखुला इसलिए गालियां और देते हैं। सुनो, गैर मदखुला और मदखुला के बारे में आपने सवाल किया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो है वो शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है? शादीशुदा हूँ मैं, बोलिए। तो आप क्या है, आपकी वाइफ क्या है, मदखुला है कि गैर मदखुला है? मदखुला है, हाँ मदखुला है। हाँ, तो उसी को मदखुला बोलते हैं, ठीक क्या है ना? बात समझ है, गए ना सुभान मदखुला अल्लाह। किसको बोलते हैं? तुम एक अहले इल्म से बात कर रहे हैं। अरे मैं घर सवाल से क्यों कर रहे हैं? आपके घर में से एग्जाम्पल दे दिया, मिसाल दे दिया, इससे बड़ी मिसाल क्या होना? सालाम दे दी है ना, तो मैं भी मदखुला के लिए पेश कर रहा हूँ आपको रिवायत में। ठीक, चल हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम या बुखारी फिर शेख इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, होने पर, तीन के तीन होने पर हदीस का बाप बांध दिया उन्होंने। किसके किसके, मदखुला की गैर मदखुला? तीन तलाक के तीन जायज होने पर किसके मदखुले से लेकिन? बात बांध दी। पढ़ो, हाँ पढ़ो उनके पढ़ो बाबा मत ने पढ़ो, बाप पढ़ो पूरा। तीन तलाक के उसकी दलील जिसकी ने तीन तलाक दिए, हाँ, दलील बोल के लेकर आए उन्होंने, तीन तलाक अरे जायज पढ़ो है। ना पूरी बात, पढ़ो ना, अल्लाह के बंदे पढ़ो पढ़ो ना। ना। अरे हाथ में किताब नहीं है। क्या क्या, चलो वो बाप पढ़ दो, बाप क्या है? बाप वही बोल रहा ना, आ रहा तुम दिमाग अकल बात तो हम जो ढूंढ रहे वो मिल नहीं रहा ना, वहाँ मदखुला का लफ्ज या गैर मदखुला का लफ्ज। तलाक का बाप निकालो, बुखारी शरीफ खोलो, तो खोले फोन लगा, खोले। मुझे फोन लगा वो। हाँ हाँ, खुलाओ खुलाओ। एक काम करो, व्हाट्सएप पे आओ, दे तो रेडीमेड नहीं 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 बिरयानी नहीं पका नहीं 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 नहीं, वो व्हाट्सएप का नहीं हम चलते, देख लेते वो, हम देख गूगल लेते के। वो, टेंशन नहीं। मुगली भागा। पढ़ो वो बाप पढ़ो वो जरा, इमाम बुखारी ने जो बांधे। अरे तुम खोलो ना, तुम खोल के पढ़ो। क्या खोलूं मैं? अरे तुम क्या है तुम? अरे मैं अरबी नहीं पढ़ने बोल रहा, मैं उर्दू पढ़ने बोल रहा, तर्जुमा। क्या बोल रहा है? वो अरबी का टेंशन मत लो कि रिजवान भाई अरबी पढ़वाएंगे, गलती निकालेंगे। मिल गया, उर्दू पढ़ो, उर्दू। मिल गया क्या पूछ रहा हूँ? हाँ? मिल तुम गया, पढ़ते बोल के बच्चों से निकलवा रहे क्या? मिल गया क्या पूछ रहा हूँ? क्या हुआ, फोन क्या करो अनवर मुझे, भाई, क्या बात है? मिठा मिठा हलवा है क्या तुम्हारे पास अनवर भाई थोड़ा का? तो करो ना फोन, तो कान पे सुन नहीं रिजवान साहब, मेरे फोन पे रिजवान साहब मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो सुनो ना मेरी बात। दो फिर दो 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 दो। सुन रहा हूँ मैं। रिजवान रिजवान भाई, हाँ मेरे घर पे क्या बोले? रिजवान भाई, हाँ, सुन रहा हूँ मैं।
उम्मत का जिस चीज पे इजमा हुआ वो बंदा गुमराह होगा नहीं होगा? बोलिए किस चीज पे उम्मत का इजमा हुआ है? तलाक के। रानी स्कीम के साथ वो डाल दो पूरा, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इजमा आप किसको दो कहते जग डाल हैं? दो स्कीम के साथ, कोई नहीं। इजमा में सबका मुत्तफिक होना जरूरी है कि नहीं? अगर कोई उसके खिलाफ चला जाए, बाद में अगर कोई उसके खिलाफ चला जाए, या तो वो इजमा नहीं माना जाएगा, या फिर उसको इजमा के खिलाफ होने की वजह से क्या आप काफिर कहेंगे? एक बात बोलूं आपको, हाँ, चल बेटा मजाक कर। कुरान और हदीस के मुकाबले में इजमा हो ही नहीं सकता। कुरान हदीस के मुकाबले में कहाँ मैं कब बोल रहा इजमा? तुम क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ये पूछ रहा इजमा किसे कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इजमा क्या उसको कहते हैं जिसके अंदर सब के सब लोग शामिल हो। अगर कोई एक दो उलमा या मुहद्दिसीन उसके खिलाफ हो तो क्या उनको इजमा का मुखालिफ या काफिर जो आप कहना चाह रहे हैं वो कहा जाएगा? या फिर उस इजमा को इजमा ही नहीं कहा जाएगा क्योंकि दो चार लोग उससे शामिल नहीं है? इजमा की तारीफ बताइए। सुनो, अल्लामा ताहवी रहमतुल्लाह अलैह इजमा नकल करे। हाँ, क्या करें? हाँ, इजमा नकल कर दिए ना। एक भी सहाबी से तुम उनकी नफी दिखा दो, मैं मान लूंगा इजमा की। अगर उमर फारूक का फैसला इजमा के खिलाफ है, नहीं एक भी सहाबी से बता दो पक्का। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के जमाने में उन्होंने उनकी मुखालिफत। हाँ, हाँ, मुखालिफत। उमर फारूक रज़ियल्लाहु के पास ऐसे शख्स को लेके आया जाता जो बीवी को अपने 3 तलाक देता, उन्होंने कहते तेरी बीवी तुझ पर हराम हो गई, और उस पे जो है तुम सजा भी देते। नहीं, सही है, वो 3 तलाक दे तो हराम हो जाती ना, वो सही बात है ना, क्या गलत है? क्या बोल रहे हैं? 3 तलाक तो हराम ही हो जाती ना वो। हाँ, तो हजरत इब्ने अब्बास के पास भी एक शख्स आता, 3 तलाक दे दिया, तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं तूने रब की नाफरमानी की, तेरी बीवी तुझ पर वही। हाँ, पता है मुझे, मैं सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ ना, मैं वो लफ्ज़ ही तो गौर से सुन रहा हूँ ना। उसी से तो यतीम है, उसी से तो यतीम है अनवर भाई, वही तो चीज नहीं है ना। बिल्कुल। मजलिस वाला ही तो ना कुरान की आयत में दिखा सके वो, ना इमाम बुखारी के कौल में, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल में। मजलिस का जो तायन करे, तो कुरान की आयत पढ़ो ना, फैसला हो जाता ना। मजलिस का जिक्र है नहीं है, कुरान की आयत पढ़ो ना। मजलिस का जिक्र ही नहीं है, कहीं को तुम आयत करते, पूछ रहा हूँ मैं। अरे तो तुम पूछो ना, तुम हमारे को वो बताओ ना, कुरान की आयत पढ़ के बताओ ना। तो फिर नहीं, हाँ तो फिर बताओ तुम मजलिस का जिक्र। सबसे पहली बात सुनो, सबसे पहली बात, मजलिस को हम मजलिस के खाइल ही नहीं है मजलिस के। सबसे पहली बात सुनो, आपने जो सही मुस्लिम की रिवायत को शाज कहा है, ठीक है ना? शाज जो होती है वो ज़ईफ रिवायत होती है। क्या मैं ये कह रहा हूँ, शाज जो होती है ज़ईफ होती है ना, हुकुम में है वो ज़ईफ। अरे शाज ज़ईफ के हुक्म में आती है ना मेरे भाई। के एतबार से हदीस शाज है। सनद कौन कह रहा है? मैं रिवायत की बात कर रहा कि वो शाज रिवायत बोले तो ज़ईफ ही होती ना। तो ज़ईफ की किस्म है शाज। तो मैं भी तो वही बोल रहा, क्या मैं कुछ अलग लैंग्वेज में बोल रहा, चाइनीज वेनीज बोल रहा क्या मैं? आप ये सनद के एतबार से सही रहेंगी वो रिवायत। सनद मतनीच नहीं बोल रहा ना, मैं बोल रहा शाज रिवायत ज़ईफ होती ना। हाँ बोलो, आगे बोलो। अरे उसूल हदीस के आपने कुछ है ना, उसूल हदीस का कुछ तो भी होगा ना। एक ही बात बोल रहे, आगे बोलो, आगे पढ़ो। मैं पूछ रहा, कंफर्म कर रहा, शाज रिवायत ज़ईफ होती ना। अगर मैंने उस रिवायत को आपके घर से सही साबित कर दिया तब आप मान लेंगे ना? एक मजलिस की जो 3 थी वो एक ही थी, अल्लाह के रसूल के जमाने में, हजरत अबू बकर के जमाने में, हजरत उमर के शुरू के 2.5 साल जमाने में, मान लोगे ना? अगर मैं रिवायत को सही साबित कर दिया तो आपके घर से, वो भी अमलन। हाँ, अरे आपका आलिम कबूल कर रहा ना, रिवायत सही है, वो सनदन सही सनद के एतबार से सही तो मैं भी मान हाँ, चलो ठीक है। अमल के एतबार से वो रिवायत ज़ईफ है, वो मतन के एतबार से ज़ईफ है, मतलब हाँ मतन के एतबार से वो ज़ईफ है। अगर मैंने मतन के एतबार से आपके घर से साबित कर दिया कि वो सही बोल रहे तो मान लेंगे, तब आप मसला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। घर की गवाही कौन सी बनाए? हाँ, घर की गवाही किसको बोलेंगे? घर की गवाही बोले जो तुम्हारे जो आलिम है, जो भी मुहद्दिस है, जो तुम्हारे अबू हनीफा की तकलीफ करते, कान खोल के कान में तेल डाल के सुन लो। अनवर भाई देखे कैसा वही तो लेके आया मैं जहाज से, चलिए थे नहीं भागते अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अनवर भाई बता दो। जी। अभी भी इंशाल्लाह देखो, मैंने शुरू में फिर एक बार दोहरा दूं, मेरा दिल बड़ा है, फिर भी मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ। बात कर रहे हैं ना मेरे इमाम अबू हनीफा बात कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा से रिवायत को शाज़ साबित कर दो, मैं दिल बढ़ा रहा हूँ। तुम जिसे साबित करने वाले थे अबू हनीफा थे, वो दूसरे कोई और थे। मैं जवाब दे रहा ना, सुनेंगे उसका जवाब।
अनवर भाई, इन्होंने कहा कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुखल्लिद है, ठीक है ना। जी जी उनके मुकाबले में किसका कोई चलने वाला है ही नहीं इनके नजदीक, और मैं जी, जी, मजबूरी भी नहीं करूंगा कि ये माने। जी, मेरा जी, इतना मुतालबा है कि वो रिवायत शाज़ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से साबित कर दे, बात खत्म हो रही कि नहीं। बेशक बेशक तकलीदी बेशक करवा रहा ना मैं, और बेशक इमाम सब चीज बेशक करवा रहा मैं। चले ठीक है, आगे बढ़ेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बढ़े आगे अबू बढ़े। हनीफा की तकलीफ करते आओ से। अरे तुम करते ना यार, तुम अबू हनीफा से अकबर अनवर से भाई, बता वो बोले मैं ना। तुम्हारे को अबू हनीफा का कहीं अनवर भाई, वो दिमाग जवाब तो दे वो जाता कौन है, दिखाता हूँ मैं, दिमाग हाजिर नहीं। अनवर भाई जान दो, आराम करने दो उनको, नहीं नहीं नबी का कौन दिखाता हूँ कुछ भी तुमको, बोल रहे नबी की बेचारे इत्तिबा हो। करने वाले। हाँ अरे वो हदीस शाख कैसा होगी वो तो किससे बताएंगे आप? अबू हनीफा से के मुखल्लिद है तो अबू हनीफा पे बताना पड़ेगा ना। अबू हनीफा से बताओ ना। तो उनके मुखल्लिद है बोले ना, आप दूसरों का नहीं पेश करना बोले ना, तो तुम्हारे ऊपर नहीं चोट होता क्या? वो किस मसले में उनके मुखल्लिद, किस मसले में मुखल्लिद उनके, किस हदीस मसले के में सही बने ज़ईफ़ में भाई? है, हाँ? हदीस के सही ज़ईफ़ में है क्या उनके हदीस मुखल्लिद? के तो सही फिर ज़ौक़ पे तो अमल का हुक्म लगता ना। अमल का हुक्म कब लगा था? अमल का हुक्म मुस्तहिद हदीस के जो बिना है, पे लगाता ना। अरे अल्लाह के बंदे, हदीस नहीं तो क्या मुस्तहिद कोई चीज को सही ज़ईफ़ करार देगा क्या? हदीस ही होती है तो ना, हर हदीस मसले कुरान में होती है ना। गैर मनसूदा मसले में है उनकी तकलीफ खाली, अरे ये मनसूसा है कि गैर मनसूसा है तकलीद का मसला? मनसूसा है। फिर इसमें तो फिर तकलीद की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुमको तो गैर मनसूसा में लगती ना। फिर यहाँ पे तो अबू हनीफा की शर्त मनसूसा क्यों लगा दी? में जिस तलाक का मामला मनसूसा है, कुरान की आयत है, 3 फिर तलाक के देने इसमें का बीवी तकलीफ कहीं हराम हो को कर जाती। रहे बेटे, तुम इसमें तकलीफ कहीं कौन को कर रहे? तुम करो बोल रहे, अरे तुम हम करो तो बोल रहे तुम्हारे, पागल अरे इंसान। हम तो तुम्हारे घर से गवाही दे, तुम तो अबू अबू हनीफा हनीफा से से बोल रहे। बता रहा था, कुरान से बता रहा हूँ मैं तुझे। अनवर भाई अरे जाने हराम हो दो, जाती है। अनवर भाई जाने दो, अरे वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जाने दो अल्लाह अनवर अकबर। भाई। अरे भाई ये जान तुम्हारे लो घर से अबू हनीफा को तुमने रिजवान खास साहब, किया ना इसमें। मनसूसा रिजवान मसाइल में साहब भी कहाँ अबू पर है हनीफा तुम? को खास। मुखलिस अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते 3 तलाक से बीवी हराम। हाँ क्या क्या? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 तलाक से बीवी हराम हो जाती है। एक मजलिस की और एक मजलिस और मजलिस खा ले रहे हैं दे सर, दे पेश करें, चले कॉल पेश करें, कहाँ से पेश करें? चलिए पढ़े सनद पढ़े पेश करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बढ़िए। हम चलो कबूल कर रहे हैं। पढ़े वो बिस्मिल्लाह, चलिए रिवायत पढ़िए। आपको नहीं मालूम है? नहीं भागेगा मालूम है? मुखल्लिद यहाँ से भी तो भाई को भागेगा। पूछ रहा मैं, नहीं भाई नहीं को नहीं पूछ रहा मालूम है, मैं, क्या पूछ रहा नहीं हूँ? मालूम है ना, आज तक जाहिर नहीं जाहिर सुना बोलो। मैं। मुखल्लिद जहर आपकी का घर की प्याला गवाही पी पेश सकता करूँ? है, पढ़े ना। ये भी नहीं पढ़ सकता। सुनो सुनो सुनो, घर की आप पढ़े, गवाही देता हूँ। अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का वो फरमाते देखो हैं, फिर कहाँ जा रहे हो? अरबा चारों अइम्मा अबू हनीफा, शाफी, मालिकी, और उधर हम्बली, भागा है सबके पास एक मजलिस की 3 तलाक 3 ही होती। ठीक है चले, इमाम घर की अब्दुल गवाही वहाब पढ़ा। और सुनो, रहमतुल्लाह। और इस पर जो सुनो, तुम्हारा फतावा बस हो गया ना, एक कॉल आया ना, कहीं कॉल आया ना, रुको ना आप। सुनो इमाम सुनो अब्दुल सुनो सुनो, घर वहाब की गवाही देना रहमतुल्लाह बात ही अलैह, है। सुनो, इमाम अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। हेलो, मुखल्लिद भाग रहा है यहाँ से अब। अरे अरे यहाँ दलील से देना चल दो के ना, बात करना। एक दलील दिए ना तुमने, एक अरे दलील क्या दिए ना। जवाब सबूत देना लेना। है? अबे इसमें तबसरा कर लेना पहले। नहीं नहीं नहीं, तुम आपने गूगल आलिम की बात नहीं मुखल्लिद। सुन रहे तुम। सुन रहा अरे ना हम मैं, सुन सुन तो रहे रहा ना, ना, इसमें तो बात सुन रहा करना ना। चाह रहे हैं हम। भगवड़े रुकना है, बात करना भाई। अरे तुम लोग मेरे को पकड़े हो रहे लो। इमाम अरे यहाँ अब्दुल तो वहाब बात करना। सुनो सुनो अनवर भाई, इमाम अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि चारों इमाम वगैरह जो भी आपने कॉल पेश किया, इमाम अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह और इमाम साहब तक आप सनद पेश कर दें। चलिए मसला खलास। मतलब इन्हें झूठ बोल रहे थे बंदे, हाँ उन्होंने झूठ बोले। देखो, झूठ सच वाली बात जब आएगी तो फिर हम हाँ। अपना आपके उलमा के आपको अक़वाल बोले, पेश करना शुरू करेंगे सही सही रिवायतों अब्दुल पर वहाब इख्तिलाफ में। रहमतुल्लाह अलैह कौन सी हिजरी के मौजूद थी? बताएं आप। मैं आपको सनद कौल उन तक मिलता बोल के बोला मैं आपको। फिर तो मतलब फिर साबित नहीं है ना, क्या बोले? साबित नहीं है ना मतलब। तो जो मोहता इमाम मोहम्मद से मैं आपको इमाम मोहम्मद का कौल अबू हनीफा की माशाल्लाह भाई, बहुत सनद। खूब, बहुत जबरदस्त बनी है रिकॉर्डिंग। अरे अरे नहीं अनवर भाई, फुल हमारे भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा भी इल्मी बात करे उन्होंने। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने आप सुनने मिली जो हमने कभी नहीं सुनी थी, तो अच्छा लगा बात करके। ऐसा नहीं है जी। जी जी। हाँ क्या कह रहे थे? इमाम अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कौन सी सनद के, क्या कौन सी सन हिजरी के मुहद्दिस? बढ़ाए आगे बढ़ाए बात। नहीं आप मेरे को बात बताओ, हर बात तुम सनद नहीं मानते। नहीं तो आप कहते हैं कि आप सनद के अलावा भी मानते हो, तो हम उस पर आते हैं। फिर जो आपके नजदीक सनद जरूरी है कि नहीं है? इजमा जब नकल कर रहे हैं तो बैवक्त इजमा तो नकल कर रहे हैं ना। हाँ इजमा, अरे इस पे इजमा है कि तकलीद है कि मनसूसा मसाइल, इसी तो परेशान कर डाले हो जब से बात करें। शुरू में तुम मनसूसा मसाइल बोले, फिर तुम तकलीद की तरफ भागे, अब इजमा पे आ गए। इजमा खुद एक दलील है अपनी जगह।
یہ مسئلے میں تم اجماع کرتے کہ تقلید کرتے کہ اچھا، یہ منصور بتائیے مسائل کو رضوان مانتے؟ صاحب، رضوان صاحب ایک مسئلہ ایک بتائیے، ہمارے سیفٹی انور کلیئر بھائی بھی نہیں ہے لائن آپ پہ کا۔ ہے، انور بھائی بھی لائن پہ ہے، اجماع دلیل ہوتا نہیں ہوتا بتائیے آپ؟ ارے بھائی طلاق کو کس سے نہیں ٹھہرو آ رہا ہوں، انور بھائی تمہارا ہاں نہیں ہوتا معلوم؟ ہوتا، چلو ایک سیکنڈ، ہاں ہوتا، چلو اچھا ہوتا۔ اجماع سے دلیل پوچھی جا سکتی ہے؟ اجماع کس کو بولتے؟ اجماع بولتے کس کو؟ نہیں وہ اجماع کس کو بولتے ہیں وہ بات کی بات ہے، کیسے کی آپ بات جس کی کو بات اجماع ہے؟ بولتے ہیں، آپ بھی جس کو اجماع بولیں گے تو اس پر دلیل پوچھی جائے گی مطلب کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی بندے، کوئی بھی چند لوگ، کوئی بھی فرقے کوئی والے، بھی کوئی نہیں، بھی مسلک والے پہلے آپ جمع ہو کے اجماع کوئی کر بھی دیں گے، نہیں، اجماع ہو جائے گا کیا؟ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، جو آپ کس کو اجماع بولتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، آپ کس کو، آپ نہیں اجماع نہیں پیش آپ کر رہے کس ہیں کہ کو میں پیش بولتے ہیں کر وہ رہا ہوں؟ بولو، میں میں بول رہا ہوں۔ میں اجماع کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ اجماع کا دعویٰ بھائی کر ایک رہے بات ہیں، آپ بتائیے، تاریخ پیش کریں پہلے۔ نہیں چلو میں کوشچن کر لیتا ہوں چھوٹا سا اجماع پہ۔ نہیں پہلے آپ نے بولو، یہ ہمارے انور صاحب ہے، ان کو اجماع کے بارے میں نہیں معلوم کچھ بھی۔ آپ کو معلوم ہے تو آپ ہم دونوں کو بتا دیں، آپ ہم دونوں کو بتا دیں، مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ اجماع سے دلیل پوچھتے بولتے ہیں نا، میں ایک وائس میں ریکارڈنگ لگایا تھا نا، یوٹیوب پہ لگائے، اور ہمارے رضوان صاحب ہے، اجماع خود اپنی جگہ پر دلیل ہوتا بولے تو کیا کر رہے، وہ آڈیو لگائے۔ اجماع کو دلیل مانتے نا، کون انکار کر رہا، لیکن اجماع بولتے کس کو، وہ سوال چل رہا ہے یہاں پہ۔ ہاں یہ بات بولے آپ، کھچڑی بناتے ایک ہی چیز میں ملا کے تو۔ نہیں رضوان صاحب یہ بات آپ کے اہل چیزوں کو نہیں معلوم ہے؟ کیا بات کیسی ہے انور بھائی، اللہ عمران بھائی کیا بول رہے ہیں پوچھو آپ؟ انور بھائی کو معلوم ہے کیا، پوچھو نا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے پہلی بات تو، آپ جو ارے پیش کرنے پہلے والے ہیں، جو آپ دعویٰ میرے کر رہے ہیں سے اسی کو نہیں بھائی معلوم ہے۔ ارے تم پیش کرو نا یارو، خالی پیلی ٹائم پاس کر رہے، اجماع کیا ہے، پیش کرو۔ اجماع سے دلیل پوچھ سکتے ہیں کیا پوچھ رہا ہوں؟ 36 منٹ ہوگی رضوان بھائی، بہت بڑی ہوگی، بہت ہے بھاگ نا، گیا بڑی میں ہو یہاں جا پہ، رہی نا، بہت بڑی 36 منٹ ہوگا۔ پھر بات کر لے کے انشاءاللہ اجماع کی تاریخ جب لے کے آئیں گے بھائی اپنے، جی تو اب اسٹڈی بھی کر عمران لیں گے، بھائی کیسا کب وقت کرنا، ملے گا۔ کب کرنا بولو آپ۔ بھاگ رہا کیا، بھاگنے کی ارے تیاری اتنی کر بڑی رہے ریکارڈنگ ہوگی، بھگوڑے کتنی ہاں، ریکارڈنگ کرو بولتے یار۔ غیر مخلد بھاگ رہا وہ، کیونکہ اس کو اجماع کی تاریخ نہیں سننے اس مل میں رہی۔ لوگ سن کے بولیں گے بہت دونوں کی دلائی۔ غیر مخلد بھاگ رہا، اس کو اجماع کی تعریف نہیں سننے مل رہی، اس کے لیے وہ رضوان کس کو، انور صاحب کو بول رہے ہیں نا؟ نہیں ہم بھاگ رہے، ہم دونوں غیر مخلد بھاگ رہے، ہم کو نہیں ہونا ایسی کھچڑی والی تقلید، انور ہم کو صاحب نہیں مخالف بننا، ہو گئے نا؟ ہم کو نہیں بننا کھچڑی مخلد، کسی کی بھی پاؤں پڑنے لگو اچانک میں، کھچڑی بنا دی نا پورے دین کو، کھچڑی تم بنا دیے، تم بنائے نا ہم نہیں یارو، کھاتے ایک ایسی جگہ تو کھچڑی، بات کریں دلیل نا، بنا رہے، ایک ہم نہیں جگہ نہیں کھاتے رک ایسی کے بات کھچڑی۔ کرے تو۔ ایک مسجد سے ابھی تک ذکر نہیں دکھائے، تم کہاں ہے مسجد تمہاری؟ تم نہیں دکھائے پہلے تو، ہاں مجلس تم میں نہیں تو ڈھونڈ دکھائے، رہے تھے ہم، ہمارا امام دعویٰ تھوڑی ہے، تم اچھا پریکٹس کر غیر رہے ہو، کب مقلدان لگاؤ دعویٰ کر تمہارے رہے، فون، کب غیر بولے مقلدان آپ بول رہے تین ایک ہوتی، تین ایک عمران ہوتی، بھائی، تین ایک ہوتی، دلیل عمران کہاں بھائی تمہاری؟ ہم تھوڑا چارج کرنے آئے تھے، انشاءاللہ آپ چارج ہو گئے ہیں تھوڑا، اب تھوڑا تحقیق کو تیز کریں، آپ سمجھے کیا؟ نہیں تمہارا ایک مجلس کہاں ہے صرف؟ اور آپ نے جو مجھے پہچان لیا نا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اتنے مجھے لگتا ہے سال بھر نہیں، ہوئی ہوگی بات ہوئی، لیکن الحمدللہ آپ نے آواز پہچانے، اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا میں، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آواز کرنا نہیں پہچانی۔ کرنا دو بھی صحیح ہے، تم بولے تھے نا اس سے پہلے۔ 37 منٹ ہو گئے بس ہے۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، ہاں، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا 38 طبیعت ہو بھی گئے، صحیح نہیں ہے، السلام سردی ہو گئی ہے، کیا بول رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔